create electromagnetic waves, how we have to how we have to produce electromagnetic waves, how we have to produce, कैसे produce करते हैं electromagnetic waves? Will people remember? Accelerating the charge particle. Yes, by accelerating the charge particle. Okay, and when we accelerate the charge particles or when we oscillate the charge particles, the electric field and magnetic field also oscillate. Means there is an electric field, of course, which results into a magnetic field and vice versa, and this also oscillates, but the direction of oscillation is perpendicular to each other. Like if electric field is in the x direction, magnetic field will be in the y direction, and overall propagation of the charge will be perpendicular to the to this both, that will be towards the z direction. Okay, so now we'll not go ahead with do you know. That is not the important part. Actually, for you it is the important part, but for you it is quite at higher level, so it's not required to explain you now. So in 12th standard, if it is required, people will teach you. Okay, so let's move ahead with the characteristic of electromagnetic waves. Now we'll understand what are electromagnetic waves and what are its characteristics. So whoever is reading, just go ahead with, wait for a, okay, start reading. Go ahead with the first characteristic. The electric and magnetic fields E bar and B bar are always perpendicular to each other and also to the direction of propagation of the EM wave. Thus, the EM waves are transverse wave. Okay, so I have already discussed that, like, if I am going ahead with the first characteristic, if I discuss the first characteristic, how we will discuss it? This is my x-axis, this is my y-axis, and this is my z-axis, or any of the one you can take, that is on you. Okay, now just look at the direction. What you can say is, when you are looking at this diagram, okay, so what I said, this is my x-axis, this is my y-axis, and this is my z-axis. Okay, so this part, ये वाला जो part है, so if I'm saying this one is my E bar, so this one, ये वाला जो है, that will be my B bar. So angle between the two, E bar and V bar कितना लग रहा है? अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ये जमीन पर है और ये ऐसा है, it is 90 डिग्री. और इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? देखो, अगर आप E बार देखो तो इट इज टुवर्ड्स y एक्सिस, B बार देखो तो इट इज टुवर्ड्स z एक्सिस, और इनका प्रोपगेशन, इनका मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? ये जा कौन से डायरेक्शन में है? X axis. So that is what the first characteristic of electromagnetic waves explains you, that E bar, B bar are always perpendicular to each other, and what we have experienced that their propagation is also perpendicular to both. Next is जो electromagnetic waves होते हैं, when we talk about electromagnetic waves, these electromagnetic waves, they are transverse wave. They have a nature of transverse wave. Do you remember what is transverse wave? Yes, oscillate होते हैं. What is the reason of transverse wave? Anyone remember? How you differentiate between transverse wave and longitudinal wave? Transverse wave में Particle oscillation होता है और propagates in a direction perpendicular to the propagation. Perpendicular to the propagation. फिर से सोचो और बोलो. Perpendicular propagation. What is the explanation for transverse wave? Differentiate between transverse wave and longitudinal wave. When you say a wave is a transverse wave, or when you say a wave is a longitudinal wave, give an example. आप लोग ऐसे बेसिक्स वीक हो जाएगा तो कैसे चलेगा आपको? फिर 12th कैसे पढ़ोगे आप? ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. yes, कुछ याद आया? yes,
Yes. पानी के मैंने अगर पढ़ाया होगा आपको तो मैंने एक एग्जांपल दिया होगा कि पानी में आप कोई चीज फेंको तो पानी का मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और उसकी एनर्जी बाहर की तरफ जाती है। तो पार्टिकल जब अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, वी से दैट सच वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। क्या है ट्रांसवर्स वेव्स? दैट द वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे होता है, बट उनकी जो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है वो बाहर की तरफ होता है। So what are transverse waves? Transverse waves are those waves in which the particle oscillates perpendicular to the direction of propagation. कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ याद आ रहा है बच्चों? Yes. सब लोग 7:30 बजे नींद में है क्या? उठ जाओ नींद से मोहन प्यारो। ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? Parallel to the direction of propagation. यस, Yes. ये दोनों ऐसे ऐसे ऑसिलेट होंगे और वेव का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। होप यू रिमेम्बर। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है और जो तुम्हारा प्रोपगेशन है वो ऐसा होता है। तो डायरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशन एंड प्रोपगेशन इज 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वी से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सारे के सारे जो होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव के नेचर को फॉलो करते हैं। कुछ समझा मैंने क्या कहा? Are you people clear what I am trying to say? Yes. Okay, go ahead with the second one. Second characteristic. Product E bar into B bar gives the direction in which the EM wave travels. E bar into B bar also gives the First of all, it energy. is not into, it is cross. You never say E bar into B bar. E bar is one vector, B bar is another vector. It's a cross product. So you have to say E bar cross B bar, क्योंकि आपको अब पता है कि अब आप लोग साइंटिफिक बच्चे हो, ऐसे नहीं हो कि कोई भी कुछ भी बोलेगा। मतलब आपके लिए डॉट और क्रॉस दो अलग चीजें हैं कि नहीं? बोलो, क्या दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? No. बोलो। No. Dot product is multiplication for scalars and cross product is multiplication for Vectors. vectors. So when you see now dot or cross, you don't have to say it is a multiplication. You have to say A dot B. You have to say A cross B. That is very important. अगर आप ऐसे into पढ़ोगे तो उनको लगेगा आपको कुछ नहीं आता. So you have to say that vector, and when you are saying E bar, so you are talking about a vector. Vector के सर पे हम लोग arrow डालते हैं ना? So you will say the cross product of E bar cross B bar. ऐसा बोलना है, समझे? समझा बड़े सर? श्रेया वापस रीड करो. Read it again. The cross product E bar cross B bar gives the direction in which the EM wave travels. E bar cross B bar also gives the energy carried by EM wave. Now, okay. Do you remember, like if I'm writing A bar cross B bar, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कुछ तो होगा. A bar cross B bar का कैसे निकालते थे? A bar cross B bar याद है क्या आपको? AB sin AB theta. sin theta. Don't go for AB sin theta. Normally क्या करते Right थे? hand thumb rule. But right hand thumb rule gives the direction. I am talking about how you used to calculate A bar cross B bar. Determinant. ऐसा मैट्रिक्स बनाते हो, Determinant method. है ना? IJK डालते हो, Yes. इसका जो वैल्यू है वो डालते हो, इसका जो वैल्यू है वो डालते हो, Yes. क्रॉस करते हो, जो भी रिजल्ट आता है वो आपका रिजल्टेंट होता है. ओके, इसका जो डायरेक्शन है कि A बार क्रॉस B बार का डायरेक्शन, A बार क्रॉस B बार का जो रिजल्टेंट होगा C बार, उसका डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? तो कैसे निकालना होता है? दिस इज A बार एंड दिस इज B बार. सो आपको करना क्या है? यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल. क्या करोगे बताओ? दिस इज A बार, दिस इज B बार.
let's keep perpendicular to each other. Give the direction of C bar. कौन से डायरेक्शन में जाएगा? This is A bar. This is B bar. Give me the direction. परपेंडिकुलर Z-axis. आएगा, Z एक्सिस बाहर की तरफ आएगा. बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ पेपर. आप Yes. करते क्या हो देखो, how you find out. This is A bar, this is B bar. तो जो क्रॉस आप कर रहे हो उसकी तरफ आप ये चारों उंगलियां रखोगे, और जो पहला वाला है ना उसकी तरफ अपनी चारों उंगलियां रखो और उसको ऐसा टर्न करो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, और आपका थंब जो डायरेक्शन देगा ना वो डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा. सो व्हेन यू टर्न इट, आपको आपका थंब का डायरेक्शन कहाँ दिख रहा है? वेयर इट इज शोइंग यू? आउटसाइड अपवर्ड्स. है यस. कि नहीं? Yes. Yes. So what will be direction of C? It will be perpendicular to A cross B. दिख रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? यस. Yes. B bar cross A bar बताओ जरा क्या कहाँ आएगा? B bar cross A bar बताओ जरा कहाँ आएगा? अंदर जाएगा. Yes, something like this. आपको B bar की तरफ चारों उंगलियां रखनी है, नेगेटिव आपको ऐसा साइड कर्ल करना है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ. अब हम B bar क्रॉस A bar बोल रहे हैं ना, तो B bar की तरफ चारों उंगलियां रखनी है और A bar की तरफ कर्ल करना है. तो आपका जो थंब है वो कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ. अब जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अभी इसने क्या बोला कि E bar क्रॉस B bar है ना, ये हमको वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी उसका डायरेक्शन देगा. देखो अब ये E bar है ना, E bar का डायरेक्शन ये है. मैंने आपको बोला था कि E bar के डायरेक्शन में आपको अपनी चारों उंगलियां रखनी है. जस्ट कीप इट अवे एंड व्हाट यू कैन सी. क्या दिख रहा है? कहाँ जा रहा है मेरा वेव का डायरेक्शन? कहाँ है जाने का? टुवर्ड्स E bar क्रॉस B bar. तो E bar की तरफ आपको ये चारों उंगलियां रखनी है और B bar की तरफ उसको मोड़ना है. कहाँ दिख रहा है? किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है? एक्स. X. सो E bar क्रॉस B bar आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा और एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी. समझे? समझा व्हाट आई सेड? Yes. बोलो बच्चों. यस. Yes. Yes. सबके सब उठ जाओ नींद से. 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग सो रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ो. मूव अहेड. The E bar and B bar fields vary sinusoidally and are in phase. So they are varying sinusoidally. Sine as you can see हाँ, साइन को फॉलो कर रहा है, साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है. ठीक है. एंड दे आर ऑलवेज इन फेज. इन फेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में कोई लैग हो. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट शुरू हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट शुरू होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से शुरू हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से शुरू होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री से शुरू हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री से शुरू होगा. मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा तुरंत मैग्नेटिक फील्ड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा. आपको कभी ये ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलेगा कि ठीक है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है फिर आधे घंटे के बाद मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. मतलब दोनों का जो एंगल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एंगल से शुरुआत करेगा बनना, मैग्नेटिक फील्ड भी तुरंत उसी एंगल से बनना स्टार्ट करेगा. सो दे विल बी इन फेज. कभी वो लोगों का फेज में डिफरेंस या फेज लैग नहीं आएगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ने 180 डिग्री बना लिया, पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना बना लिया, दे हैव कंप्लीटेड दिस मच, मेरा अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं. तो जब ये वाला सेक्शन बन रहा है तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुआ. ऐसा नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरे डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा. सो व्हाट दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं और दे आर ऑलवेज इन फेज. मतलब उनकी हमेशा दोस्ती चलती है. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बन गया अभी दूसरा रुका हुआ है या दूसरा बन गया पहला वाला रुका है. दे विल बी मेड एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे दोनों बनेंगे और एक ही एंगल से दोनों. अगर एक 30 से शुरू कर रहा है तो दूसरा भी 30 से शुरू हो जाएगा. सो दे विल बी ऑलवेज इन द फेज. They will never have a phase lag or they will never be in out of phase. कि भाई चलो आउट ऑफ फेज का मतलब होता है अगर एक 0 से शुरू हो रहा है और दूसरे वाले ने ये आधा कवर कर लिया, दिस पार्ट हैज कवर्ड, तो अभी एक ये यहाँ शुरू कर रहा है तो तक दूसरा वाला यहाँ पहुंच गया. ऐसा नहीं होता. दे आर ऑलवेज इन फेज. हमेशा इन फेज होता है. दोनों का एंगल ऑलवेज सेम होता है जहां से भी स्टार्ट हो. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा एवरीवन? Yes. Yes. यस.
Okay, go ahead with the fourth point. EM waves are produced by accelerated electric charges. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ये तो डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि ये बनाते कैसे बनाए जाते हैं, चार्जेस को एक्सेलरेट कर. गो अहेड. EM waves can travel through free space as well as through solids, liquids, and gaseous. नाउ आपके ईएम वेव को, आपका ईएम वेव प्रोपोगेट ही अभी आपने देखा कि वेक्टर ई बार और वेक्टर बी बार का रिजल्टेंट उसका प्रोपोगेशन होता है. तो ई बार और बी बार रिस्पॉन्सिबल है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चलने के लिए. ई बार एक धक्का देता है, बी बार एक धक्का देता है, जो रिजल्टेंट धक्का होता है उस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट करता है. तो इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे साउंड का ऐसा है कि भाई जब तक एयर मॉलिक्यूल्स या कोई मीडियम नहीं होगा तो आप जो भी बोल रहे हो वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक नहीं जा सकता. मतलब अगर आप स्पेस में चाहो कि आप डायरेक्ट बात कर लो तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है. दे कैन ट्रैवल इन द स्पेस, दे कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एवरीवेयर, बिकॉज उनका जो भी ट्रैवलिंग होता है वो ई और बी बार के वेक्टर की वजह से होता है. उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो है In free space, EM waves travel with velocity c equal to that of light in free space. C is equals to 1 upon root mu 0 epsilon 0 is equals to 3 into 10 raised to 8 meter per second. now Where mu wait now your electromagnetic waves जब वो स्पेस में चलते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं. ये बात आपको पता है ना? अच्छा, जब मीडियम में चलते हैं तो उनका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम मीडियम की किस चीज पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव Permittivity and permeability. यस, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. सो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द स्पेस, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. बट जब वो मीडियम में एंटर करते हैं दे वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर आपको याद हो सेम टाइप का एमसीक्यूज मैंने आपको एमसीक्यू दिया था इन योर असाइनमेंट. आपको 1/μ0 का डायमेंशंस निकालना था. शायद जब मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा भी था कि 1/√μ0 का डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड का आता है. तो μ0 उसका स्क्वायर होगा. याद है किसी को? Yes. 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 ओके. μ0 इज नोन एज परमिएबिलिटी एंड ε0 इज नोन एज परमिटिविटी. μ0 जो होता है उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं एंड ε0 जो होता है उसको परमिटिविटी बोलते हैं. ठीक है, गो अहेड विद द सेवेंथ प्रॉपर्टी. one material medium, the velocity Vm of EM waves is given by Vm is equals to 1 upon root mu per mu epsilon, where mu is the permeability and epsilon is the permittivity of the given medium. ओके, सो अगर मीडियम में आपको निकालना है कि भाई स्पीड क्या होगी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो सिंपली आपको √μ into एप्सिलॉन करना है. म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ योर medium and epsilon is the permittivity of the medium. Okay, go ahead. The EM waves obey the principle of superposition. Okay, what is the principle of superposition? किसी को याद है? कूलम्स में पढ़ा था. Anyone remember here? What is the principle of superposition? में सारे फोर्सेस एक जगह पर ये करते हैं. Not really. कुछ और है? Can anyone explain? When two or more waves meet at a point, then they produce their own displacement independent that of the other. Exactly. This is what is the perfect definition. कि सुपरपोजिशन वेव्स जो बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं और अगर वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो वहां पर जो भी रिजल्ट होगा वो सब अपना अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे. उनको एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लाइक अगर आपको याद हो कूलम चार्जेस में हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था. इफ यू पीपल रिमेम्बर कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देयर आर मेनी चार्जेस हुए हैं. ठीक है, लेट्स से 5 चार्जेस है. तो दिस इज Q1, Q2, Q3. तो हर चार्ज अपना अपना फोर्स इसके ऊपर क्रिएट करेगा और जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q3, Q4, Q5 सबका एडिशन होगा.
दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल टेल्स यू कि अगर तुम्हारा दो वेव्स है, नाउ लेट्स टॉक इन द टर्म्स ऑफ वेव, एक वेव है y1, दूसरा वेव है y2, ये दोनों वेव आकर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। जस्ट बहुत अच्छे से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। दिस इज y1, दिस इज y2, तो ये दोनों वेव्स यहाँ पर जब मीट करेंगे तो ये दोनों वेव इस तरीके से मीट करेंगे कि यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट बनेगा, और वो रिजल्टेंट जो होगा, जो इन दोनों के मीट करने से बन रहा है, दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ y1 plus y2. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो एज समवन सेड कि मैम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देयर आर टू वेव्स, y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट है इन द y डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए वेव में हम डिस्प्लेसमेंट को y डायरेक्शन की तरफ दिखाते हैं, तो y1 पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, कितना पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। सो y1 इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड का है और y2 इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो सिंपली इन दोनों का एडिशन होगा। सो एडिशन विल बी दिस। सो रिजल्टेंट विल बी सिंपली a वेक्टर एडिशन ऑफ y1 एंड y2। कुछ याद है ऐसा पढ़ा है हमने? कुछ याद है what I said now? Yes. Yes. Okay, so this happens कि आपके EM waves जो होते हैं, अगर दो EM wave है, okay, दो EM wave है, अगर आपने उन दोनों को मिलवाया तो रिजल्टेंट जो होगा वो उन दोनों का एडिशन होगा, और उन दोनों का एडिशन होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेव होगा। सो y1 अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, y2 अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को मिलाकर एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज गिवन बाय y1 बार प्लस y2 बार। सबको समझा ये क्या है? समझाओ कंसेप्ट? Yes. 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 Okay. Move ahead. The ratio of the amplitude Okay, of before moving ahead with the things, अब मैं कुछ ऐसी चीजें, 3-4 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता और ना उनका कोई प्रूफ है फिलहाल आपके लिए। ये सारे प्रूफ आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे, तो जस्ट एज अ प्रॉपर्टी समझ के रख लो। जब आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे तो आपको धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी कि कैसे प्रूफ हुई है और उसका रियल मीनिंग या फिजिकल मीनिंग क्या है। तो फिलहाल जस्ट जान के रख लो कि ऐसा कुछ होता है। the ratio of the amplitude of electric field magnetic fields is constant at any point and is equal to the velocity of the EM wave. ओके, नाउ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लो और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लो, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज E नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज B नॉट। सो ये देखा गया कि आपको पता ना एम्पलीट्यूड क्या होता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Height of the crust or depth of the trough. ओके, हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। लाइक अगर आपका ये एक वेव है तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाई डायरेक्शन के अक्रॉस में हम दिखाते हैं, है ना? याद है आपको कुछ? सो अगर जो ई नॉट का एम्पलीट्यूड है और जो बी नॉट का एम्पलीट्यूड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज तो होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ है वरना तो मैग्नेटिक फील्ड भी तुरंत शुरू हो जाएगा, वरना इंस्टेंट होगा, रुकेगा नहीं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कुछ ऑब्जर्व किया गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या देखा गया? ई नॉट इज सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। दिस इज द रिलेशन विच इज ऑब्जर्व कि अगर आपके पास बी नॉट है, अगर आप उसमें स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ई नॉट का एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ये रिलेशन ऑब्जर्व किया गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लेट अस से इट इज 2 मीटर, सो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ई? बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ई? 6 into 10 raised to 8. 6 into 10 raised to 8। हालांकि इतना होता नहीं है, nothing can go like this, but I'm just Yes. telling you okay, this is how it goes। समझ में आया what I said? Highest Yes. speed is Yes. 3 into 10 raised to 8। Okay, so 6 into 10 raised to 8 meter हो sorry it can take place, हाँ ऐसा हो सकता है, sorry what I said। So E नॉट और B नॉट के बीच में जो रिलेशन आता है उनके एम्पलीट्यूड्स का, what do you find that it is
2 meter multiplied by 6 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. Before going ahead with this, can you think it is dimensionally correct? Is it dimensionally correct? Dimensions wise correct है क्या बताओ? मैम c स्पीड ऑफ लाइट है ना? Yes. Think about it, whether it is dimensionally correct. क्या आएगा आंसर? स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं ना? Yes. तो यहाँ पे तो अगर ये मीटर पर सेकंड है और इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं मीटर में लूं, सो मुझे तो यूनिट प्रॉपर आ ही नहीं रहा है. Yes. थिंक अबाउट इट. यस मैम, इनकरेक्ट है. थिंक, सोचो और मुझे नेक्स्ट टाइम आंसर करना. ठीक है, इसके बारे में सोचो और आंसर करना कि मैम ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली. इसके सी किसी साइंटिस्ट ने ये रिलेशन दिया है तो ये रिलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, सो आपको निकालना पड़ेगा या फिर ये सेम प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रीड करो, शायद आपको कुछ समझ में आए. रीड द सेम प्रॉपर्टी. सब लोग अपने अपने बुक में रीड करो. रीड अवे. जिसके पास बुक नहीं है वो जरा पीडीएफ में रीड करो. ये क्या बोल रहा है? रीड किया सबने? सो थिंक अबाउट इट. अगर कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं अप्रोच कर पाए तो मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो मैंने एक डायमेंशनल एनालिसिस आपको दिया है कि E naught is the amplitude of electric field, B naught is the amplitude of magnetic field. Okay, amplitudes we always measured in meters. So how I'll get the ratio of this two to be the speed of light that is given by the unit of meter per second. So just think of it and give me the answer. ठीक है, सोचो इसके बारे में. ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी समझ गई कि अगर आपके पास बी नॉट है, अगर आप उसमें स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी. वैसे ही अगर आपके पास ई नॉट है, इफ यू हैव अ ई नॉट और आपको बी नॉट निकालना है तो आपको सिंपली उसको सी से डिवाइड कर दोगे तो आपको बी नॉट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Okay, so think about this dimensional analysis. Explain me this next time. अगर आया तो ठीक, नहीं तो मैं समझाऊंगा. Okay, let's move ahead with the 10th property. As the electric field vector E naught bar is more prominent than the magnetic field vector B naught bar, it is responsible for optical effects due to EM waves. For this reason, electric vector is called light vector. Now देखो, आप देख सकते हो कि E नॉट जो है ये B नॉट पे डोमिनेंट है. E नॉट क्या है? C टाइम्स ऑफ B नॉट है ना, है कि नहीं? मतलब E नॉट और B नॉट के बीच में आप जब रिलेशन देख रहे हो तो E नॉट जो है वो C टाइम्स बड़ा है B नॉट से. मतलब स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स बड़ा है B नॉट से. उसका एम्पलीट्यूड Yes. C टाइम्स बड़ा है B नॉट से, है ना?
सो इसी वजह से सिंस आपका ई नॉट जो होता है वो थोड़ा डोमिनेंट होता है, मतलब वेव जिस भी तरीके से बिहेव करेगी वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर पे डिपेंड करेगा, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर पे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि पूरा वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की के तरीके से बिहेव करता है। जो भी चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा पूरे वेव में वो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डोमिनेंट ओवर मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट मूव्स विद द समवेयर इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, गो अहेड विद द नेक्स्ट। The intensity of a wave is proportional to the square of its amplitude and is given by the equation IE is equals to 1 upon 2 epsilon 0 E naught 2 and IB is equals to 1 upon 2 B naught square upon epsilon upon mu 0. Okay, now anyone can explain what is intensity? Intensity क्या होती है? What is intensity? How can you define intensity? Square of amplitude. मुझे मीनिंग चाहिए। What is intensity? मैं बोलती हूँ जब कि किसी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या किसी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? What does that mean? इंटेंसिटी ज्यादा है means what? मिस मुझे नहीं पता। मुझे भी बताओ या मुझे नहीं पता। What is intensity? When you say intensity is high, what does that mean? Anyone here? When you say कि Power इसका है। intensity high है या इसका पावर पावर से रिलेटेड है, पावर नहीं है। इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता बेटा डिफाइन तो करो व्हाट इज इंटेंसिटी। सी इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइक अगर आप लाइट के टर्म्स में बात करो तो इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स emitting per unit area per unit time. So it is number of photons per unit area per unit time. एक यूनिट एरिया में से एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट एरिया में से एक यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट गिव्स द इंटेंसिटी। ऑफ कोर्स एक यूनिट एरिया में से, एक यूनिट टाइम में से अगर ज्यादा फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं इंटेंसिटी हाई रहेगी। इंटेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा है। अगर उस यूनिट एरिया में से एक यूनिट टाइम के लिए कम फोटोन रिलीज हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। कम है। इंटेंसिटी कम। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ जिसकी भी चीज बारे में, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बोल रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटॉन्स की टर्म में बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात करो तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, बट इन अ यूनिट एरिया एंड इन अ यूनिट टाइम। ये बोलना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस है। So when you say that intensity is high, तो आप ये बोलते, आपका बोलने का मतलब ये होता है कि भाई वहां से जो भी चीज निकल रही है एक यूनिट एरिया और एक यूनिट टाइम में उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि अरे बहुत इंटेंसिटी में लोग वहां से निकल रहे थे, मतलब एक यूनिट एरिया से बहुत सारे लोग एक यूनिट टाइम में निकल रहे थे। समझ में आ रहा है? मेरे को प्यारा Are you clear what I was trying to say? समझा? Yes. Yes. The intensity is number of photons per unit area per unit time. This is how it goes. Okay. So what it is saying कि आपका electric field का intensity E is given by the formula half epsilon naught E naught का square, and your magnetic field की intensity का formula is given by half B naught square by mu naught. अभी किसी ने बोला भी था कि मैम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। देखो इसकी भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है और इसकी भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। सो दैट इज करेक्ट कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है। समझे?
व्हाट आई सेड क्लियर हुआ? Yes. Yes. इंटेंसिटी का मीनिंग समझा सब कुछ? ओके, नेक्स्ट इज अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी जो भी इंटेंसिटीज हैं, ओके, वट एवर इंटेंसिटीज आर एग्जिस्टिंग, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. मतलब योर IE विल बी ऑलवेज इक्वल टू IB. अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुए हैं तो 10 ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड भी बनना शुरू हो जाता है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? सो Yes. नंबर्स विल बी सेम. Yes. हाँ, उनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है कि एक का जो एम्पलीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से काफी बड़ा होगा, बट नंबर्स, फेज, ये सारी चीजें एक दूसरे में सेम रहेंगी. समझ में आया मैंने क्या कहा? क्लियर हुआ? सारे प्रॉपर्टीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सिर्फ ये डायमेंशनल ये सोचो, अगर आपको समझा तो ठीक, नहीं तो मैं समझाऊंगी कि व्हाट डज दैट मीन. बाकी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, नॉट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज रीड करो, उसके बाद आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. आपको टोटल 10-12 प्रॉपर्टीज है आपके पास, आपको उसमें से कोई भी 6 प्रॉपर्टी याद करनी है, एनी 6, दैट इज ऑन योर मूड. आपको कौन सी 6 याद करनी है? स्टार्ट डूइंग. मैं भोसड़ी के बेटे 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 अरे बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी मामे. प्रतिभा मैम, आर यू देयर? प्रतिभा मैम, आर यू देयर? प्रतिभा मैम, हाँ हाँ आपने वो स्टूडेंट कौन है, आपने वो ऑब्जर्व किया है? हु इज दिस अभिषेक? हाँ मैंने उसको लिया था, अभिषेक, उसने मैंने लिया था ना, तो बोल रहा था कि मेरा न्यू एडमिशन है. मैं अभी सर को ही मैसेज डाल रही हूँ. तो पहले आपको सर से कंफर्म करना चाहिए कि एडमिशन है या नहीं है. आप डायरेक्टली कैसे आपने अलाउ किया उसको अंदर? अगर आपका ऐसे कोई भी मैसेज करेगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या? नहीं मैंने इसको रिमूव कर दिया, अभी मैं मैसेज डालती हूँ सर को. वो बात ठीक है मैम, वो कंटिन्यूअसली कब से यही चीज कर रहा है. अगर सर को पता चलेगा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और अगर आपको कोई बच्चा अगर